Hello students, today we will be doing some questions, advanced level questions of the topics permutation and combination and binomial theorem. So I have written two questions for you on the board. मैं ऐसे ही दो दो तीन तीन करके क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा और I will request you to please attempt these questions first by yourself. Try to find their answers correctly. है ना, आप वीडियो पॉज करके उनके आंसर्स क्वेश्चंस नोट करिए, आंसर्स जो है खुद फाइंड करिए and then check your answers and solutions जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ. Okay, so question number 1 is if 2 factorial upon 1 factorial 9 factorial plus 2 factorial upon 7 factorial 3 factorial plus 1 upon 5 factorial 5 factorial is 2 raised to the power m upon n. ये आई होप शायद काफी आप लोगों ने इस टाइप का पैटर्न कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा. नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है. बस उसके आगे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया. एडवांस में जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं. दो तीन चैप्टर्स के या दो तीन कंसेप्ट को मिक्स करके वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. राइट, सो इसमें भी मैंने ऐसे ही किया. इस क्वेश्चन में दो चीजें मिक्स कर दी. देन ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द थ्री लाइंस. इन तीन लाइन से बनने वाला ऑर्थो सेंटर क्या होगा. सो फर्स्ट एम इज टू गेट द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन करेक्टली. तो अगर आप बेटा इनके डिनोमिनेटर चेक करें, 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 and 3 5 and 5, इनका जो सम है टोटल दैट इज 10. सो बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसमें एक बहुत कॉमन सा कंसेप्ट होता है. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल्स का सम 10 फैक्टोरियल है तो आई आल्सो वांट 10 फैक्टोरियल इन द न्यूमरेटर. So I will be multiplying and dividing by 10 factorial. So this becomes 2 factorial into 10 factorial upon 1 factorial 9 factorial plus 2 factorial into 10 factorial upon 3 factorial 7 factorial plus 10 factorial upon 5 factorial 5 factorial. Now let us see how can we simplify it. I can write this 10 factorial upon 1 factorial 9 factorial as 10c1 and 2 factorials into 2. Let us write it 10c1 only one times plus then this can be written as 10c3 10 factorial upon 3 factorial 10 factorial. ये भी 2 times लिखा हुआ है. Next अभी मैंने एक ही बार लिखा है. Next is 10 factorial upon 5 5. This can be written as 10c5. This is only one time. अच्छा, odd मैं देख रहा हूँ टर्म्स चल रहे हैं, तो after this I will get 10c7. You know that 10c3 and 10c7 are same, तो जब ये दोनों ऐड होगा तो it will be 2 times of 10c3 जो ये टर्म लिखा हुआ है. And similarly the next term will be 10c9. So 10c9 and 10c1, these are two equal. इन दोनों को ऐड करके you'll get 2 factorial into 10 factorial upon 1 factorial 9 factorial. So this is nothing but 1 by 10 factorial into sum of odd binomial coefficients. The sum of odd binomial coefficients is 2 raised to the power n minus 1. N is 10, so 2 raised to the power 10 minus 1. So this comes out to be 2 raised to the power 9 upon 10 factorial. Its answer is given to be 2 raised to the power m upon n factorial. Question mein, this is factorial, right? 2 raised to the power m upon n factorial. So comparing, you will get the value of m as 9 and the value of n as 10. Now what you have to do is you have to get the orthocenter of this triangle. If you observe the equation of sides closely, you will see that the slope of this line is 1 and the slope of this line is minus 1. That means these two lines are perpendicular. So the triangle which is being formed, it has two lines which are perpendicular to each other. X minus y plus 1 equals to 0 and x plus y plus 3 equals to 0, and this is 2x plus 5y minus 2 equals to 0. That means orthocenter is the intersection point of altitudes and two sides are perpendicular. That means it's a right angle triangle. So this point itself will be the orthocenter of the triangle. So you need to find the point of intersection of these two lines. So the lines are x plus y plus 3 equals to 0 and x minus y plus 1 equals to 0. On adding, I'll get 2x is equals to minus 4 or x equals to minus 2. Clear? And if you put x equals to minus 2, if you put x as minus 2 here, so the value of y that you will be getting is minus 2 and plus 1. Y will be minus 1. So the coordinates of orthocenter are minus 2 comma minus 1.
अब हमें ऑप्शन से m और n की वैल्यूज रखकर चेक करना है कि किससे हमारा आंसर -2, -1 आ रहा है। m is 9 and n is 10, 2m 18 -20 -2 and m minus n is -1। ये ऑप्शन ही जो है सीधा सीधा सेटिस्फाई कर गया। m और n रखकर आई एम गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स एज -2 -1, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सीरीज कैसे सम फाइंड करते हैं बेटा? इस टाइप का जो सीरीज है, डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल्स का सम ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, राइट? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेस्ड प्रॉब्लम है। Two packs of 52 playing cards. I hope every one of you know the trichotomy of the nomenclature of playing cards. 52 playing cards. They are divided into 4 suits: spades, clubs, hearts, and diamonds. 26 of black cards, 26 of red cards. हर सूट के अंदर there are 13 cards. There are 13 denominations: ace, 2, 3, 4 up till 10, then jack, queen, king, right? तो सभी सूट्स के 13 कार्ड्स रहते हैं। तो ऐसे दो डिफरेंट पैक्स को मिक्स कर दिया, 52 ऑफ वन पैक, 52 ऑफ अदर पैक, दोनों को मिक्स कर दिया एंड दे आर शफल्ड टुगेदर। So the number of ways in which 26 cards can be drawn. Now out of those 104 cards, I have to draw 26 cards so that no two cards are of same suit and same denomination. कोई भी दो कार्ड सेम सूट और सेम डिनोमिनेशन के नहीं होने चाहिए। ऑप्शंस आर गिवन, हमें चेक करना है कि कितने तरीके से हम कर सकते हैं। सो बेसिकली कैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे बेटा, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, now what is happening is बेटा 52 कार्ड्स हैं, ठीक है? अच्छा, हर कार्ड अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है भाई? टू के अगर मैं बात करूं तो टू के 4 कार्ड्स होंगे। वन इज ऑफ स्पेड्स, वन ऑफ क्लब, वन ऑफ डायमंड्स एंड वन ऑफ हार्ट्स। पर टू के 4 कार्ड्स अलग अलग सूट्स के हैं, तो यूनिक कार्ड हो गए। टू ऑफ हार्ट्स एक ही होगा, टू ऑफ क्लब्स एक ही होगा, ठीक है? अब हमने पैक कितने मिक्स करे? टोटल 2 पैक। तो बेटा अगर मैं ऐसे सब आपको समझाऊं तो जैसे ये ये ठीक है, ये मैंने आपको बोला 2 ऑफ हार्ट है, तो इसके 2 पत्ते होंगे, 2 पैक है ना टोटल। फिर 3 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ हार्ट्स इसके 2 पत्ते होंगे। 4 ऑफ हार्ट्स के 2 पत्ते होंगे। क्लियर? और ऐसे चलते चलते टोटल कितने कार्ड्स होंगे? टोटल 52 कार्ड्स। 52 ऐसी लाइन में मैंने जमा दी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। टोटल 104 कार्ड्स हैं भाई, मतलब यहाँ 2 ऑफ जो है हार्ट बना हुआ है, इस पे भी 2 ऑफ हार्ट बना हुआ है। ऐसे लास्ट में आते आते मान लीजिए ये किंग ऑफ डायमंड हो गया, ठीक है? ये भी किंग ऑफ डायमंड हो गया। तो ऐसे मैं 52 कार्ड्स लिख सकता हूँ टोटल, और सबके दो कार्ड है क्योंकि 2 पैक्स को मिक्स किया था। अब मुझे कितने कार्ड्स उठाने हैं? 26 कार्ड्स। तो बेटा मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो मैंने 52 में से कोई से भी 26 जो है लेट से कार्ड्स सिलेक्ट करें। एक लाइन में टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो मैंने उन 52 में से किसी भी 26 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने 52 टू 26 किया। मान लीजिए मैं टिक करता हूँ कि 1 2 3 लाइन्स है ना, मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इन कॉलम्स में से 52 कॉलम्स है ऐसे टोटल, इन 52 कॉलम्स में से 26 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट किए, है ना? मान लो ये टिक जो है 26 टिक्स मैंने लगा दी। अब उस टिक पे उस कॉलम में 2 कार्ड्स पड़े हुए थे। अब मुझे उन दोनों में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है। भाई इस टिक में से या तो मैं 2 ऑफ हार्ट्स ये वाला सेलेक्ट करूं या ये सेलेक्ट करूं। दोनों सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास सेम सूट और सेम डिनोमिनेशन, सेम सूट सेम डिनोमिनेशन क्या आ जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करूंगा, तो सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2। फिर इस वाले कॉलम में से अगेन दीज आर 3 ऑफ हार्ट्स, इन दोनों में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करूंगा, तो उसको सेलेक्ट करने के भी 2 ऑप्शन है। और ऐसे हर एक कॉलम, तो 26 कॉलम सेलेक्ट करे, सब कॉलम में 2 कार्ड से उनमें से कोई एक ही मुझे सेलेक्ट करना है। तो ये 2 जो होगा कितनी टाइम्स आएगा बेटा? 26। सो द करेक्ट आंसर विल बी 52C26 into 2 raised to the power 26. So that is written in option number B. Now what happens? 1042 1004C26, you know that is wrong। 104 मतलब टोटल 104 में से कोई से भी 26 उठा ली, तो बेटा उसमें से ये दोनों ये भी हो सकता था कि उन 26 में से सेम सूट के सेम डिनोमिनेशन के कार्ड आने स्टार्ट हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये तो जो है पता नहीं क्या लिखा है, 2 की पावर 26 into 52।
आई डोंट नो किस तरीके से बिल्कुल ही गलत है। एंड 56 से 26 का मतलब है हमने 26 काट के उठाए। इंटू 2 का क्या मतलब है? अब इंटू 2 का मतलब है कि अब ऐसे मान लो कि इनमें से आपने कोई से भी 26 कार्ड उठा लिए या इनमें से कोई से भी 26 कार्ड उठा लिए। तो अगेन जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि सेम डिनोमिनेशन के और उसके जो है वो कार्ड आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 52c26 into 2 raised to the power 26। ओके बेटा, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में you have to find the sum of the binomial coefficients k c k plus k plus 1 c k। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो नोटेशन है ये बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है k कुछ भी n r ऐसे डिनोट्स NCR। ठीक है ना, ये समझना है। अब जेई में दे हैव यूज सच नोटेशंस, तो आपने पता रहना चाहिए कि इस फॉर्म में लिखा रहता है तो इसका मतलब ये NCR होता है। ठीक है, हाँ बेटा। सो we have to find the sum of the binomial coefficients k c k plus k plus 1 c k plus k plus 2 c k and so on up to n c k। अगर ये x c y के बराबर है तो x और y रिस्पेक्टिवली क्या होंगे? बेटा ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप की सीरीज। एडवांस में पास्ट ईयर्स के अगर आप पिछले 15-20 साल के क्वेश्चंस चेक करेंगे तो इस टाइप की सीरीज के क्वेश्चंस काफी बार जो है एडवांस में पूछा गया है। राइट, तो हमें जो इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज करना होता है वो होता है बेटा एक एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। द फॉर्मूला दैट वी अप्लाई to combine two binomial coefficients, what is happening is यहाँ इतने सारे binomial coefficients ऐड होकर एक सिंगल कोफिशिएंट binomial coefficient में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बेटा दो binomial coefficient को आपस में कंबाइन करके एक में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला होता है। व्हाट द फॉर्मूला इज, जो ऊपर लिखा हुआ है एन वो सेम होना चाहिए और नीचे दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर के सी के लिखा है और यहाँ के प्लस वन सी के लिखा है, कहीं पर भी ऊपर वाले टर्म सेम नहीं। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट द ट्रिक इज, के सी के की वैल्यू वन होती है तो बेटा मैं इसको क्या के प्लस वन सी के प्लस वन भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, भाई वन ही तो है इसकी वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज वन आई कैन राइट इट एज के प्लस वन सी के प्लस वन। नाउ द सीरीज विल बिकम k plus 1 ck plus 1 plus the next term is k plus 1 ck. Now these two will get added together, these two will get added together using this formula and it will become, ऊपर n plus 1 हो जाता है तो k plus 1 k plus 1 से हो जाएगा k plus 2 c। और r minus 1 में जो बड़ा नंबर होता है r is bigger than r minus 1, तो इन दोनों में बिगर नंबर is k plus 1, ये बन जाएगा। Now we have added these two terms, have we have gotten k plus 2 c k plus 1। now this will be added with k plus 2 c k plus 1 gets added with the next number k plus 2 c k and it becomes k plus 3 c k plus 1, k plus 3 c k plus 1। so you can now observe the pattern and you can see that these two terms when combining with k plus 2 c k, ठीक है, तो इनको कंबाइन करके मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उससे पहले वाले तक हम कहाँ पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे ऊपर जो k प्लस टू लिखा था वो तो k प्लस टू ही होगा और नीचे k प्लस वन था। तो ये कंटिन्यू करते करते व्हेन वी आर एडिंग nck with its previous term, nck से previous term, so it will be what, nck plus 1। ऊपर वाला टर्म सेम हो जाता है और नीचे जो है k plus 1 आ रहा है। so finally after adding this two using this formula you will get n plus 1 c k plus 1 which can also be written as n plus 1 c n minus k, right? ncr is equal to nc n minus r। तो ये दोनों हो सकते हैं। अब x c y की वैल्यू, x तो n plus 1 होगा, ये तो फिक्स है, x तो जो होगा वो n plus 1 होगा। सो n plus 1 इन दोनों में लिखा हुआ है और जो r की ये सॉरी y की वैल्यू है ये k plus 1 भी हो सकती है और n minus k। तो हम चेक कर लेते हैं, k plus 1 भी हो सकती है, k plus 1 तो इसमें लिखा हुआ है डी ऑप्शन, और हो सकती थी n minus k जो नहीं लिखा हुआ है। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स डी ऑप्शन। क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा कई बार ये NCR जो है उसको घुमाकर NC n माइनस आर लिख लेते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार हमारा ये इक्वल क्यों नहीं आ रहा है। ये एक बार जरूर चेक करिएगा। ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग n माइनस आर। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in the multiplication of these n factors we have to find the coefficient of x raised to the power n minus 2।
ये बेटा टोटल कितने फैक्टर्स है, मैंने क्या बोला, n फैक्टर्स है, ये समझ में आ रहा है, x माइनस वन, x माइनस टू, 1 2 3 से लेकर n तक जा रहे हैं, तो n फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे। जब ये n फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, कैन यू टेल मी दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, सही है, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, जब x x x मल्टीप्लाई होंगे सब हर ब्रैकेट के, जैसे बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी आएगी इसमें, एक्स क्यूब आएगी। अच्छा, नेक्स्ट माइनस के साथ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आता है, दो ब्रैकेट्स के x मल्टीप्लाई करें और उन दोनों को x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को तीसरे के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ऐसी पहले और तीसरे के x मल्टीप्लाई इसके कांस्टेंट से, इसका और x मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर और इसके कांस्टेंट से, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, फिर प्लस x, तो एक x लूंगा और बाकी दो के कांस्टेंट्स लूंगा, सही है, तो क्या क्या आएगा, 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा -6। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, तो अब जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो हाईएस्ट तो x की पावर n आएगा माइनस x की पावर n माइनस वन आएगा। अच्छा, उसमें क्या आता है बेटा, उसमें क्या आता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, 1 प्लस 2 प्लस सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स बेसिकली, और फिर अगला आएगा x की पावर n माइनस टू। अच्छा, x की पावर n माइनस टू में क्या आएगा, n माइनस टू का मतलब है मैंने दो ब्रैकेट्स को छोड़ दिया और बाकी सब, टोटल n माइनस टू चाहिए ना, तो n फैक्टर्स में से दो को फैक्टर्स हटा दिए, बाकी n माइनस टू फैक्टर्स जो है उनमें सबके x x x x के टर्म्स मल्टीप्लाई किए, तो x की पावर n माइनस टू तो हो ही गया, और जो दो फैक्टर बचे हुए थे रिमेनिंग, तो x की पावर n माइनस टू को मैंने उन दोनों के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी 1 इंटू टू, 1 इंटू थ्री, एंड सो ऑन अप टिल जो भी, जैसे n माइनस वन इंटू एन, बेसिकली लाइक दिस, है ना, और इसके अलावा और भी हमारे पास पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स आएंगी। सो द कोफिशिएंट ऑफ x रेज पर n माइनस टू, हाईएस्ट पावर अगर n है तो जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन होता है वो सम ऑफ द रूट से मिलता है, x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट आपको सम टेकन टू एट अ टाइम से मिलता है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, सो द वैल्यू दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज सिग्मा r into r minus 1 या r plus 1, you can say anything like this, sigma r into r plus 1, इस फॉर्म में जो है we have to calculate the values, या जैसे मैंने आपको लिखकर बताया ये जो सीरीज है, you have to find the value of 1 into 2 plus 1 into 3, 1 into 4 and so on up till 1 into n। अच्छा, और क्या टर्म्स आएंगी बेटा, और आएंगी 2 into 3 plus 2 into 4 and so on up till 2 into n, और ऐसे चलते चलते n minus 1 into n। तो इसका सम कैलकुलेट करने के लिए you should remember the formula of 1 plus 2 plus 3 up till n का whole square, this is 1 square plus 2 square up till n square plus 2 times the series sum that you require, that is 1 into 2 and so on up till n into n minus 1, वो ही सीरीज का सम जो हमें निकालना है, सम टेकन टू एट टाइम, जैसे बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर होता है, तो उसमें जो ये टू टाइम्स आता है, टू टाइम्स सिग्मा ए बी का मतलब होता है सम ऑफ द टर्म्स टेकन टू एट अ टाइम, दिस वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट, सो आवर आंसर विल बी what is 1 plus 2 plus 3 up till n, sigma n into n plus 1 by 2 whole square minus sigma n square, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 whole divided by 2. Now we will try to calculate this. You can easily see that n plus 1, n plus 1, it can be taken common. So if we take n into n plus 1, और यहाँ अपॉन 4 आएगा, एक 2 भी डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं, एक 2 और लेना, तो अपॉन 4 हो जाएगा। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स n into n plus 1 divided by 2 minus 2n plus 1 divided by 3. Now you can take LCM. 6 will be the LCM. 6 4s are 24. Okay, n plus 1, and then when you multiply this, 3n square plus 3n minus 3n square minus 2n minus 4n minus 2. Clear? So your answer will become n into n plus 1.
Okay, and that is 3n square. I will write it here. 3n square minus 4n minus 2. 3n square minus, sorry, 3n square minus n minus 2. फैक्टर हो जाएंगे बेटा इसके 3n square minus 3n plus 2n minus 2, 3n plus 2 into n minus 1. So n minus 1 into n plus 1 will become n square minus 1, n into n square minus 1 into 3n plus 2 upon 24. n plus 1 into n minus 1, n square minus 1, 3n plus 2 upon 24. So the correct answer for this will be option number B. Clear है? So you should know that sum of the roots taken 2 at a time. बाइनोमियल कोफिशिएंट से नहीं होगा ये कोफिशिएंट्स कैसे आएंगे ये भी हमें समझ में आना चाहिए. एक्सपेंशन में किसी का कोफिशिएंट कैसे आते हैं. तो x की पावर n minus 2 का कोफिशिएंट मतलब सम टेकन 2 at a time. डिग्री से एक कम पावर का कोफिशिएंट मतलब सम ऑफ द रूट्स की वो बात कर रहा है. वो नेगेटिव साइन के साथ आता है. सम टेकन 2 at a time वो प्लस साइन के साथ आता है. ऑल्टरनेट साइन चेंज रहते हैं. क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सब के साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें. उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. क्या लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है नंबर ऑफ 5 डिजिट पैलिंड्रोम्स. नंबर ऑफ 5 डिजिट पैलिंड्रोम. व्हाट इज अ पैलिंड्रोम नंबर? यू नो व्हाट इज अ पैलिंड्रोम नंबर? पैलिंड्रोम नंबर मतलब उल्टा सीधा एक जैसा. जैसे नाम मैं बताऊं, किसी का नेम जैसे नमन है. नमन, you read it from the forward or backward side, it is the same alphabets they are coming. N-A-M-A-N, same. Or 1, 2, 3, 2, 1. This is also a palindrome. 1, 1, 4, 1, 1. This is also a palindrome. This is an alphabet. This is using digits, right? So such numbers, they are called palindrome. So we have to write a 5-digit palindrome. We have total 5 places empty. We have total 5 places empty in which first digit is less than the second digit. 5 digit का नंबर लिखना है तो 5 digit का नंबर लिखना है और first place is less than the second digit. तो बेटा यहाँ अगर मैं x नंबर मानूं, यहाँ y मानूं या z मानूं, यहाँ y और यहाँ z, ये y and x, सॉरी. सो व्हाट हैपेंस इज, देखो मैं यहाँ नंबर रखूंगा अपने मन से कोई एक, जो यहाँ रखूंगा यहाँ वो ही रखना कंपलसरी है, और जो y मैं यहाँ रखूंगा वह यहाँ रखना कंपलसरी है. तो बेसिकली मुझे 3 प्लेसेस फिक्स करनी है. ये 3 प्लेसेस फिक्स करने के बाद ये 2 प्लेसेस ऑटोमेटिकली फिक्स होंगी. इनको सेलेक्ट करने की चॉइसेस नहीं. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फर्स्ट डिजिट इज लेस देन सेकंड. ये वाला डिजिट इससे छोटा है. देखो नंबर्स मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. I have altogether 10 digits. अब इन दोनों को भरना है तो मुझे x और y को रखने के लिए 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट डिजिट सेकंड से छोटा है. तो बेटा अगर मान लो मैंने 0 और 1 सेलेक्ट किया, 0 और 1 सेलेक्ट किया, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा. ये फिक्स है क्योंकि 0 को मुझे पहले रखना होगा, छोटे नंबर को, और बड़े को बाद में. तो अगर नंबर 0 से स्टार्ट हुआ तो 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा. ये बात भी आपको समझनी है. तो इसका मतलब जब मैं x और y का सिलेक्शन कर रहा हूं तो उसमें मैं 0 को सेलेक्ट नहीं कर सकता. मुझे इन 9 में से कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने होंगे. 9C2, लेट्स से 1 and 5, एनी 2 नंबर्स यू सेलेक्ट, उनको x और y की प्लेस पे रखने का एक ही वे है. क्यों एक ही वे है? आई कैनॉट अरेंज द नंबर्स. जो स्मॉलर नंबर है उसको मैं फर्स्ट प्लेस पे, जो बड़ा नंबर है उसको सेकंड प्लेस पे रख दूंगा. फिनिश. x एंड y फिक्स्ड हो गए. ये x और y फिक्स हो गए तो इन दोनों की भी पोजीशन फिक्स हो गई. ये पता चल गया कि यहाँ क्या रखना है. नाउ z. तो z नंबर को रखने के, नाउ आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? नाउ आई हैव 10 ऑप्शंस. यू कैन प्लेस एनी ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4. कोई फर्क नहीं पड़ता. x और y जो नंबर रखा है वो यहाँ पर भी रख दोगे, डजंट मैटर. ठीक है ना? जैसे अगर आपने यहाँ पर 2 भी रख दिया तो ये भी बेटा पैलिंड्रोम ही है. ठीक है? और 0 चाहो तो बीच में 0 भी रख सकते हो, नो इश्यू. तो इसको रखने के नाउ यू हैव ऑल टुगेदर 10 ऑप्शंस. So 9C2 कितना हो गया बेटा? 9 4 36 into 10. So your answer is
360. 360 is written in option number B. Okay बेटा, correct answer 360. समझ में आ गया पैलिंड्रोम का क्या मतलब है, कैसे हम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है number of ways in which 25 identical things can be distributed among 5 persons. हम कितने तरीके से 25 आइडेंटिकल चीजों को, है ना, अलाइक चीजें हैं, उनको 5 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो दैट ईच पर्सन गेट्स ऑड नंबर ऑफ थिंग्स। तो अब देखिए बेटा, इसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन होगा सॉल्व तो बेगर्स मेथड से, राइट। बेगर्स मेथड होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक थिंग्स अमंग पर्सन्स, है ना। p persons में n आइडेंटिकल चीजों को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दैट ईच कैन रिसीव none, one or more n identical things to be distributed among p persons so that each can receive none, one or more. तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज n plus p minus 1 cp minus 1. n तो आइडेंटिकल थिंग्स, p persons होते हैं and each can receive none, one or more. इसका ध्यान रखना। पर अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है चेंज किया है और ये लिखा है दैट ईच वन गेट्स ऑड नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स से देयर आर 5 पर्संस, x प्लस y प्लस z प्लस l प्लस m, है ना, और इनको मिलाकर टोटल 25 जो है आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इन पांचों का सम जो है 25 होना चाहिए, बट द कंडीशन इज दैट दे शुड गेट ऑड नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब 1 मिल जाए, इसको 3 मिल जाए, इसको 5 मिल जाए एंड सो ऑन, है ना। तो ऑड चीजें मिलनी चाहिए, इवन नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज तो ये समझ में आती है कि इनको कम से कम सबको एक चीज तो, सॉरी, एक चीज तो जो है मिलेगी ही मिलेगी, एटलीस्ट 1 तो सबको देना ही देना है। तो क्यों ना मैं x को 2 लैम्डा 1 प्लस 1 एज्यूम कर लूं, जहां लैम्डा 1 कंफर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई अगर x 2 लैम्डा 1 प्लस 1 है तो हमेशा x ऑड होगा, x एक ऑड नंबर होगा, जहां लैम्डा 1 0 भी होगा तो x को कम से कम 1 तो मिलेगा ही। सिमिलरली y को 2 लैम्डा 2 प्लस 1, z को 2 लैम्डा 3 प्लस 1, L को 2 लैम्डा 4 प्लस 1 और M को 2 लैम्डा 5 प्लस 1 अगर मैं एज्यूम करूं, है ना, लैम्डा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैम्डा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लैम्डा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होना ही चाहिए। अच्छा ऐसा होगा तो x y z मिनिमम 1 तो होंगे, बाकी इनका सम 25 भी हमें करना है। तो जैसे मैं इसमें रखूंगा बेटा, तो ये 2 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5, इसका सम 10 हो जाएगा बेटा। 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 से डिवाइड किया एंड लैम्डास आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ 10 identical things to be distributed among 5 persons. चेंज हो गया क्वेश्चन, 10 चीजें 5 लोगों में बांटनी है, each can receive none, 0 भी हो सकता है, 1 or more. So now I can apply this formula. So our answer will be number of things identical are 10, number of persons 1 2 3 4 5 minus 1 c 5 minus 1, because now each can receive none, one or more. So your answer will be 14c4. If you check options 14c4, देखिए 14c10 लिखा है ना बेटा, 14c4 और 14c10, अभी मैंने आपको बताया था ncr और ncn minus r इक्वल ही होता है। So the correct answer for this question becomes 14c10. Clear है? So it's a good question of a Beggars method with a little bit of extension of it. So we will solve it accordingly, and then जब हम उस स्टेप पर पहुंच जाएंगे, now each can receive none, one or more, then we apply the formula of Beggars method. Clear? Next question number 7. ये बेटा जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स अ गुड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट के साथ। ये भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, रिवीजन ही होगा एंड इनफैक्ट वी विल आल्सो गेट टू नो कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस जो है जेई पूछता है, राइट। सो 5 पर्संस आर सीटेड इन अ सर्कुलर वे। इसका क्या मतलब है, सर्कुलर वे मतलब सर्कुलर टेबल पे, सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें 5 लोगों को बिठा रखा है। देन if each of them question is if each of them is given a hat of one of the 3 colors, पांचों को एक एक हैट दी जाती है और जो हैट्स अवेलेबल हैं वो 3 कलर्स में है, रेड ब्लू ग्रीन, आरबीजी लेट्स से रेड ब्लू एंड ग्रीन,
देन नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितने तरीके से हैट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सच दैट पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट, एडजेसेंट मतलब आसपास में, जो एक इंसान के पड़ोसी हैं, वो उनको सेम कलर की जो है कलर्ड हैट नहीं मिलनी चाहिए, या दे गेट्स डिफरेंट कलर्ड हैट्स। तो बेटा इन अ सर्कुलर वे there are 5 persons. Let us take A, B, C, D, and E. Right? Let us take A, B, C, D, E. 5 persons are seated in a circular way. So there are total 3 colored hats, that is red, blue, and green. और हमें इनको पांचों को एक एक हैट देनी है, और एडजेसेंट, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मान लो रेड दे दी तो इसको भी रेड दे दी, इसको रेड दे दी तो इसको रेड दे दी। एडजेसेंट सीटेड जो पर्सन है उनको सेम कलर की हैट नहीं मिलनी चाहिए, उनको डिफरेंट कलर की हैट मिलनी चाहिए। तो देखो पहले लॉजिक से थोड़ा सा आपको ये सोचना होगा कि हम इन पांचों को, किसी को भी, हम 3 कलर की हैट्स हमारे पास नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि रेड 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 ब्लू ग्रीन रेड। अगर आप सोचो एक ही कलर की अगर 3 हैट हो गई, तो बेटा किसी ना किसी के पास तो एडजेसेंट होगी। आपने से रेड दी, इसे ब्लू दी, इसे ग्रीन दी, तो इन दोनों को रेड रेड देनी ही पड़ेगी, किसी भी तरह से आप अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम एक ही कलर की 2 हैट हो सकती है, मैक्सिमम एक ही कलर की 2 हैट, 2 रेड हो जाए, 2 ब्लू हो जाए और एक ग्रीन हो जाए, चलेगा, हम ऐसे अरेंज कर पाएंगे कि एडजेसेंट नहीं हो। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा कलर की हैट, सेम कलर की हैट नहीं हो सकती। इट्स नॉट पॉसिबल कि रेड 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 हो जाए, या रेड 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 4 बार हो जाए या 5 बार, वो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दिस केस, 2 रेड 2 ब्लू और एक ग्रीन कलर की हैट है, 5 तो करनी है अपन को टोटल। तो अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा हूँ? तो बेटा ये जो सिंगल हैट है, सिंगल हैट, लेट से मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब जब मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो अब मेरे पास 2 रेड हैट बची हैं और 2 ब्लू हैट बची हैं। तो बेटा इनको देने का क्या तरीका हो सकता है? देखो रेड अगर मैं इस ई को देता हूं तो यहाँ मुझे रेड देनी पड़ेगी, फिक्स हो गया। तो इसको ब्लू और इसको ब्लू देना ही पड़ेगा। और यदि मैंने रेड की बजाय ई को ब्लू हैट दी होती, तो यहाँ पर मुझे सी को ब्लू हैट देनी पड़ेगी, तो इसको दोनों को मुझे रेड रेड हैट देनी पड़ेगी। सो जो एक सिंगल कलर की हैट थी वो किसी एक पर्सन को दे दो, तो आफ्टर गिविंग दैट हैट टू अ सिंगल पर्सन, बाकी जो 4 हैट्स हैं उनमें से 2 2 कलर सेम है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के सिर्फ 2 ही तरीके आ रहे हैं। ये समझ में आई बात? 2 ही क्यों? रेड रेड देन ब्लू ब्लू फिक्स, और ब्लू ब्लू इन दोनों को, तो देन रेड रेड फिक्स। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ग्रीन हैट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्रीन हैट को डिस्ट्रीब्यूट करने के हाउ मेनी वेज? 5C1। वाई 5C1? ग्रीन हैट मतलब जो सिंगल कलर की हैट है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के 5C1, 5 पर्सन हैं, 5 में से किसी भी एक को मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जो 4 हैट्स बची हैं, जिनमें दो कलर्स हैं ना, 2 रेड और 2 ब्लू, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के मैंने केसेस बने, कितने केसेस हैं टोटल? 2 केसेस इनटू। ठीक है, इनटू क्यों कर रहा हूं बेटा? देखो जैसे केसेस कैसे, ये तो मैंने अभी क्या किया, ग्रीन को एक रखा। ऐसा हो सकता था ग्रीन 2 होती, रेड 2 होती, ब्लू 1 होती, या ऐसा हो सकता था ग्रीन 2 होती, ब्लू 2 होती और रेड 1 होती। तो ऐसे टोटल कितने केस हो सकते हैं जिसमें सिंगल कलर की हैट या तो ग्रीन होगी या ब्लू होगी या रेड होगी? तो ऐसे टोटल 3 केस हो सकते हैं। समझ में आई बात? पहले तो केसेस बना ली, 2 कलर और 1 कलर, ऐसे टोटल 3 केसेस। अब जो सिंगल कलर की हैट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया किसी एक पर्सन को, तो 5C1 से वो पर्सन सेलेक्ट कर दिया। उसको करने के बाद जो 4 हैट बची हैं जिसमें 2 2 कलर है, उनको टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 ही तरीके हैं, हमने देख लिया। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट देना पड़ेगा ताकि एडजेसेंट जो पर्सन बैठे हैं उनके पास सेम कलर की हैट ना हो। सो योर आंसर बिकम्स 10 into 3, that is 30 number of ways. Integer type था, so your correct answer is 30 और 30.0। जैसे भी एडवांस में मार्क करना होता है वो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे सभी सही होता था, 30 भी मार्क किया, 30.0 मार्क किया, एवरीथिंग इज राइट। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? तो अच्छा क्वेश्चन था, सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये एडवांस में, पहले प्रीवियस ईयर एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है R0 1 से लेके 10 तक AR BR एंड CR they denotes the coefficient of x raised power r respectively in the expansion of 1 plus x raised power 10, 1 plus x raised power 20 and 1 plus x raised power 30. So सबसे पहले हम यही करते हैं, AR will be what? Coefficient of x raised to the power in this expansion, it will become 10 CR, BR will be
20 CR and CR will be 30 CR. ठीक है, 10 CR, 20 CR and 30 CR. This will be the coefficients of x raised per r in the respective these three expansions. So you have to find the value of sigma r equals to 1 to 10 AR, B10 BR minus C10 AR. ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा जो है मैं इन दोनों टर्म्स पर अलग चढ़ाता हूँ. सिग्मा वेरिएबल r है, तो B10 will be constant. So I can take B10 common and then it will be r is equals to 1 to 10 AR BR. AR BR minus C10 is constant. Sigma r is equals to 1 to 10 AR whole square. Clear? So B10 means the coefficient of x raised to the power 10. It will be 20 C10 and this series will become 10 C1 into 20 C1 plus 10 C2 into 20 C2 and so on up till the last term 10 C10 into 20 C10 minus C10. C10 will be 30 C10 and this will become 10 C1 का whole square plus 10 C2 whole square and so on up till 10 C10 whole square. So basically we are getting two different types of series. Now we need to find the sum of this series. अब देखो बेटा इस सीरीज का सम मैं जो करता हूँ सॉल्व, मेरे को जो सबसे आसान लगता है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना. ऐसे समझाता हूँ आपको आसान लगेगा. 30 स्टूडेंट्स, 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. 10 boys and 20 girls. So हम कितने तरीके से in how many ways can. अब देखिए what happening is you can write this 10 C1 and 20 C1 को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करके बता देता हूँ. 20 C1 को क्या 20 C19 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. अच्छा 10 C2 और this is sorry 20 C2. So 20 C2 को मैं 20 C18 भी लिख सकता हूँ बेटा. 10 C10 और 20 C10 को 20 C10 लिख सकता हूँ. Clear? So basically what is happening is if you add these two terms you are getting 20. If you add these two numbers, you are getting 20. If you add these two numbers, you are getting 20. In how many ways can 20 students be selected? 20 students be selected. ये अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारा आंसर होगा 30 C20 के बराबर. 30 C20 और टोटल केसेस क्या होंगे? अच्छा अगर हमें 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करने तो हो सकता है हमने बॉयज में से एक भी सेलेक्ट नहीं किया हो. 10 C0 और 20 की 20 गर्ल सेलेक्ट करी. अच्छा ऐसा हो सकता है हमने 10 में से कोई एक बॉय सेलेक्ट करा हो तो 20 C19 से हमें 19 गर्ल सेलेक्ट करनी पड़ेगी. और ऐसे चलते चलते लास्ट में हमने 10 बॉय सेलेक्ट करे हो तो 20 C10 से 10 गर्ल सेलेक्ट करेंगे. तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सीरीज ये यहाँ लिखा हुआ है बेटा, इसका सम कितना होगा 30 C20 minus this term. Now this is what the value of 10 C0 and 20 C20? 1. So I'll put the value of this here. So it will become 20 C10 into 30 C20 minus 1. There can be one more way of doing this. That is in the expansion of 1 plus x raised to power 10 and 1 plus x raised to power 20 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. कोफिशिएंट ढूंढना होगा आपको x की पावर 20 का, है ना. वो भी एक तरीका होता है. तो बट दिस आई फील थोड़ा आसान लगता है हमें तो मैं इससे बता देता हूँ. माइनस 30 C10 into now this is what I hope you know the sum of the series. ये याद करते हैं हम C0 square plus C1 square up till Cn square. This is 2ncn. Clear? तो यहाँ पे लिखा है बेटा 10 C1 square plus 10 C2 square up till 10 C10 square. इसमें सिर्फ C0 square मिसिंग है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 C10 minus 1. Clear? The sum of this series will be 20 C10 minus 1. इस पूरी सीरीज की तो 20 C10 minus 1. Now this is what we have to calculate. तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 C10 into 30 C20, 20 C10 into 30 C10 लिखो या 30 C20 लिखो, बात एक ही है. तो ये दो टर्म्स तो कट जाएंगे. तो बचेगा क्या बेटा? बचेगा 20 C10 माइनस सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30 C10 minus 20 C10. Now 30 C10 is what? In the expansion of 1 plus x raised to power 30, it is 30 C10. So it can be written as C10 and x की पावर 10 का कोफिशिएंट हो गया और ये B10 लिख सकते हैं. तो C10 minus B10 will be the final answer. C10
minus b tech. Clear? So beta, this was a good question. तो एक तो सीरीज हमें बनानी है, सीरीज का सम हमें निकालना है, और इस मेथड से करो, और एक ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना ही चाहिए. क्लियर? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 की जो है वो इस सीरीज के बराबर दे रखा है, तो हमें ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर एंड दिस जो है इसकी वैल्यू चेक करनी है किसके बराबर. अब देखिए, शायद मुझे लगता है आपने इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा. इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है पूछ सकते हैं. जैसे मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ. कई बार दे आस्क यू द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू अप टिल ए टू एन. तो अगर आप इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख दीजिए. जैसे आप x की जगह 1 रखेंगे, तो ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो 3 रेज़ पावर n आ जाएगा. Sometimes they can ask you a naught minus a1 plus a2 alternate sign change. What is the sum of this series? So you can see that जहां जहां x की odd degree है, वहां minus one आता जा रहा है. So you can put x as minus one in this equation, क्योंकि जब भी even degree होगी minus one की power even जो है plus one ही हो जाएगा. So x को minus one रखने पे 1 and minus one कट जाएगा, and the value of this series comes out to be 1. अब ये हमने रखा x को minus one. Now what happens? आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो odd वाली कोफिशिएंट्स कट जाएंगे, इवन वालों का डबल हो जाएगा, उसका सम निकाल सकते हैं. सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इवन वाले कट जाएंगे, ऑड वालों का डबल, उसका सम निकाल सकते हैं. समटाइम्स क्वेश्चन आस्क्स द सम ऑफ कोफिशिएंट्स तीन तीन के गैप में, ए नॉट प्लस ए थ्री प्लस ए सिक्स, या फिर ए वन प्लस ए फोर प्लस ए सेवन, और ए टू प्लस ए फाइव प्लस ए एट, ऐसे. तो उस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन में x को एक बार 1, एक बार ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर रखते हैं. एंड वी मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रखने पर उन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, और उससे तीन तीन के गैप वाली सीरीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. राइट? अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन. इसमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर. नाउ यू नो दैट व्हेनेवर वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई द टू सीरीज. क्लियर? तो ये मैं हटा रहा हूँ, कैसे हम करेंगे वो देखते हैं. हमें एक इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1 plus x square raised to the power n is a naught plus a1x plus a2x square up till a2n x raised to the power 2n. ठीक है? अच्छा, इसे हम इक्वेशन नंबर जो है 1 बोल देते हैं. Now if I ask you to replace x with minus 1 by x, so you will get 1 minus 1 by x plus 1 upon x square whole raised to the power n as a naught minus a1 by x plus a2 by x square. Alternate sign change, a2n upon x raised to 2n. Now take LCM. Here LCM will be x square minus x plus 1 raised to the power n upon x square raised to n, that is x raised to 2n. यहाँ पर एलसीएम लेने पर भी x की पावर 2n आएगा, वो कट जाएगा, तो बचेगा a नॉट x रेज टू द पावर 2n माइनस a1 x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू द पावर 2n माइनस 2 up till a2n. This is equation number 2. Now what you can do is you can multiply these two series. You can multiply equation 1 with equation 2. So when you multiply these terms, in the left hand side 1 plus x square and x square minus x plus 1. So their product will be x की power 4 plus x square plus 1 whole raised to the power n is equals to. अच्छा, मैं मल्टीप्लाई कौन सी टर्म्स कर रहा हूँ बेटा, इसमें जिनकी जरूरत है उनको मैं मार्क कर लेता हूँ. ठीक है? आई नीड ए नॉट स्क्वायर, आई नीड ए वन स्क्वायर, आई नीड ए टू स्क्वायर. तो ए टू स्क्वायर और इसको सिर्फ ये वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आई विल गेट ए नॉट स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 2n, इन दोनों से माइनस ए वन स्क्वायर x इंटू एक्स की पावर 2n माइनस 1 अगेन x रेज पावर 2n. इन दोनों के प्रोडक्ट से दिस इज 2n माइनस 2, इन दोनों के प्रोडक्ट से अगेन x रेज पावर 2n. सो दिस इज नथिंग बट द कोफिशिएंट जो हमें फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n. दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 2n. Plus there will be so many extra terms when you multiply these two series. उनसे हमें मतलब ही नहीं. अब x की पावर 2n का कोफिशिएंट कैसे निकालें इसके अंदर? So again we make use of the given expression 1 plus x square and it is 1 plus x square plus x की पावर 4. तो अगर इसमें I replace x with x square, so what you will get on the left hand side, you will get 1 plus
x square plus x raised power 4 raised power n. It becomes this term only. And when you put x as x square in this, so a naught plus a1 x square प्लस a2 x रेज पर 4, तो हर टर्म जो है वो पावर डबल होती जाएगी. तो बेटा हमें x की पावर 2n चाहिए. अच्छा, जो लास्ट में a2n होगा उसके साथ तो x की पावर 4n आ गया होगा. तो ये तब आएगा जब बीच में an, यहाँ x की पावर n था, उसको स्क्वायर करने पर वो x की पावर 2n बन जाएगा. सो आई एम गेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज पर 2n इज an. इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो सीरीज है, इसका जो कोफिशिएंट है ये ए एन के इक्वल होना चाहिए. सो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू ए एन. क्लियर है भाई? ठीक है. प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए. तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं. तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें. चलिए बेटा, अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करते हैं. अच्छा, और मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरेटिकली जो जो पोर्शंस कवर होते हैं चैप्टर्स में वो अपन रिवाइज होता जाए वो अपने. ठीक है. तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस ये तीनों मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस है. मल्टीपल चॉइस मतलब वन और मोर देन वन और मोर देन वन मतलब एक या एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, वो चेक करना होगा. तो फर्स्ट है, अगर 4 प्लस रूट 15 i प्लस f के बराबर है, 4 प्लस रूट 15 रेज टू द पावर n, सॉरी, is i plus f where n is an odd natural number. I इंटीजर है और f फ्रैक्शनल पार्ट है 0 से 1 के बीच में. तो कौन से जो ऑप्शंस है वो सही होंगे. ठीक है. अच्छा, फॉर solving this question, 4 plus root 15 raised to the power n is I plus f. So what we do is we take its जो conjugate होते हैं ना, positive conjugate. Root 15 is less than 4, so I consider 4 minus root 15 raised to the power n. Now 4 minus root 15. Root 15 is somewhat 3.9 something, 3.8 or 3.9. So 4 minus 3.8 or 3.9 is a fractional number. अब फ्रैक्शन क्वांटिटी की पावर n, जहां n खुद एक नेचुरल नंबर है, कंफर्म एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी ही होगी. मैं उसे f डैश मान लेता हूँ. आई होप आपको याद आ रहा होगा. आप थ्योरी अगर रिवाइज करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे तो ये याद आएगा. ये भी एक फ्रैक्शन क्वांटिटी होगी. f is between 0 and 1 and f dash is also between 0 and 1. Now what we do is we'll expand it. बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं. तो पहला इसका एक्सपेंशन कितना होगा, nc0 4 raised to the power n. Next nc1 4 raised to the power n minus 1 into root 15 and so on is I plus f. Basically what we had to do is हम इन दोनों के एक्सपेंशन करके दोनों सीरीज को या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे इर्रेशनल टर्म्स कैंसिल होने चाहिए. तो इसका एक्सपेंशन इज nc0 4 raised per n minus nc1 4 raised per n minus 1 root 15. Next term will be plus, that is f dash. So I want to cancel these terms, plus minus, so I will add these two. After adding, what I'll get is nc0 4 raised to the power n plus nc2 4 raised to the power n minus 2 रूट 15 का स्क्वायर, तो वो रैशनल हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन. दैट बिकम्स i plus f dash. Now confirm any one. This is an integer number. nc0, nc2, all these are the number of ways of selecting some things out of n distinct things. So that is an integral value and all multiplied by an integer. 4 की power n, 4 raised per n minus 2 root 15 square, all is integer. And when it's multiplied by 2, तो दिस होल टर्म, ये कैसा भी नंबर हो, इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन इंटीजर होगा, ये कंफर्म है. आई एक इंटीजर ही था. अच्छा, f एंड f डैश का जब सम होगा, सो यू कैन सी दैट f प्लस f डैश will lie between 0 and 2. And if f plus f dash lies between 0 and 2 and I is an integer और I और इन दोनों का सम एक इवन इंटीजर है, तो बेटा इंटीजर में इंटीजर ऐड करने पर ही इंटीजर आएगा. दिस कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन क्वांटिटी. सो बिटवीन 0 and 2 f plus f dash can be 1 only. f
plus f dash has to be 1, then only this is possible. So इसका मतलब I जो होगा वो कंफर्म एक ऑड इंटीजर होगा. कैसे? even में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे you get an odd integer and f dash comes out to be 1 minus f. F dash comes out to be 1 minus f. Now A option, I is a natural number, correct? I will be a natural number. I will be an even number, wrong. I हमारा कैसा आ रहा है? Odd integer. I plus f into 1 minus f. Now you can see that 1 minus f is f dash. So I plus f into 1 minus f, that is f dash. इन दोनों का product a plus b, a minus b, a square minus b square will become 1, correct? And I minus f 1 minus f, sorry, 1 minus f is f dash, that is 4 minus root of 10 raised to power n. So the correct options becomes A, C and D. ठीक है, ये प्रोसेस ध्यान रखना है बेटा. जो सीरीज गिवन है और उसके कॉन्जुगेट से जो सीरीज आती है उनको दोनों को या तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट. अच्छा, अगर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ f माइनस एफ डैश आता. f माइनस एफ डैश की रेंज, f अगर 0 से 1 और f डैश 0 से 1 तो उनका डिफरेंस -1 से 1 होता है और -1 से 1 के बीच का इंटीजर सिर्फ 0 होता है. तो उस केस में f माइनस एफ डैश को 0 लेते हैं. ठीक है ना? वो डिपेंड करता है कि इर्रेशनल टर्म्स ऐड करके कट रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करके कट रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे. है तो वैसे ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बट अगेन we will be revising some concept based on it. Number of ways of selecting 10 balls from unlimited number of red, black, white and green balls. Unlimited number. अब कितने तरीके से 10 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास एक डब्बे में बहुत सारी रेड, एक डब्बे में बहुत सारी ब्लैक, एक में बहुत सारी व्हाइट और एक में बहुत सारी ग्रीन. बट तो ये जो क्वेश्चन होता है किसका क्वेश्चन होता है बेटा? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोफिशिएंट मेथड या वी से एट बेगर्स मेथड. तो समझने के लिए ऐसे समझिए, 4 बड़े बड़े कलर के कंटेनर्स हैं जिसमें कलर पड़े खूब एक जैसे. बड़े कंटेनर में एक में रेड कलर है, एक में ब्लैक कलर, एक में ग्रीन और एक में व्हाइट. अब हमारे पास 10 ट्रांसपेरेंट बॉल्स हैं, ग्लास बॉल्स, 10 बॉल्स हाथ में. हमने बॉल्स को उठा के फेंकना शुरू किया. वो जिस कंटेनर में गिरेगी, रेड कंटेनर में गिरी तो रेड कलर की बन गई, अगर वो ग्रीन में गिरी तो ग्रीन की बन गई, सारी रेड में गिरी तो सारी रेड, सारी व्हाइट में गिरी तो सारी व्हाइट कलर. तो वो 10 आइडेंटिकल बॉल्स हो गई. 10 आइडेंटिकल बॉल्स. बेगर्स मेथड में हमें सिर्फ आइडेंटिकल चीजें और डिस्टिंक्ट क्या है उनको सही से जज करना है. वो सही से जज होता है तो सही आंसर आ जाता है एक ही लाइन में, अदरवाइज आंसर गलत हो जाता है. एंड 4 डिफरेंट कलर्स और 4 डिफरेंट कलर्स. तो जो n आइडेंटिकल चीजें हैं, फॉर्मूला जो होता है ना, किसका? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, number of ways of distributing 10 identical things among p persons. ये वैसे मैंने अभी आपको लिखवाया भी था. each can receive none, one or more. each can, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ each can receive none, one or more. तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? n plus p minus 1 c p minus 1. तो हमारे लिए आंसर आएगा 10 plus 4 पर्सन, तो आंसर इज 13c3. व्हेन यू कैलकुलेट 13c3 इट विल कम आउट टू बी 286. कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. सो 286 इज ग्रेटर देन 50, 70, 100, 180 सारे सही हो गए. तो इसका मतलब इसके ऑल द 4 ऑप्शंस विल बी करेक्ट. ठीक है, बेगर्स मेथड का क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ये भी क्वेश्चन जो होते हैं बेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिविजिबिलिटी वाले, बाइनोमियल में जो अपन इनकी हम करते हैं प्रैक्टिस. सो इन दिस क्वेश्चन it is saying we have to find the value या values of n for which 3 raised to the power 512 minus 1 is divisible by 2 raised to the power n. ये पूरा नंबर 2 raised पर n से डिवाइड होता है, n की किन किन वैल्यूज के लिए चेक करना है. ठीक है, तो बेसिकली हमें पहले 3 raised to the power 512 minus 1 जो इसको सिंप्लीफाई करना होगा. अच्छा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसको देखो, मैं 3 स्क्वायर 9 raised to the power 256 माइनस 1 लिख सकता हूँ और 9 को मैं 1 प्लस 8 2 की पावर्स में मैं ब्रेक करना चाहता हूँ. 256 minus 1. Now I will apply the binomial expansion of this. So it will be 256 c0 plus 256 c1 into 8 plus 256 c2 into 8 square and so on up to 256 c256 into 8 raised to the power 256. Clear?
-1, ये जो -1 है इसे कट जाए. Now you can easily see that हर टर्म में बेटा आगे कम से कम 256 इंटू 8, 256 इंटू 8 तो कॉमन आएगा ही आएगा. इनफैक्ट लास्ट टर्म में भी 8 के बाद 256, क्योंकि 256 खुद 2 की पावर या 8 का मल्टीपल है, तो वी कैन टेक 256 इंटू 8 कॉमन. सो नेक्स्ट विल बी 1 प्लस यहाँ पर 8 इंटू सम टर्म्स. ठीक है ना, मतलब बेसिकली जो भी बचेगा वो पूरा ऐसे कुछ बचेगा. ठीक है. Now this is 256 is what? 2 raised to the power 8. 2 raised to the power 8 into 2 raised to the power 3 into 1 plus 8 lambda I will write it as, and we want it to be divisible by 2 raised to the power n into k. This should be divisible by 2 raised to the power n into k. So 2 raised to the power n becomes 2 raised to the power 11 here. भाई 3 था ना, तो अगर n की वैल्यू 3 हुई देखो, तो 2 क्यूब से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. n अगर 7 हुआ तो 2 रेस पर भाई जब तक पावर 11 है तो 11 से ज्यादा पावर से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे 2 की, पर 11 तक की पावर से तो हमेशा डिवाइड कर पाएंगे. तो a, b और c तो आंसर हो गई होगा. अगर n 11 होगा तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, पर अगर n 13 हो तो 11 तो कट जाएगा. दिस अपॉन 2 स्क्वायर बचेगा अगर n 13 होगा तो. अब वो पूरा डिवाइड होगा 4 से, वो हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 1 बच रहा है. इट्स नॉट पॉसिबल. क्लियर है भाई? So the answers are A, B and C. Okay, now question number 13. A man has total 7 relatives, 4 ladies and 3 gentlemen, and his wife has 7 relatives. So man and his wife. Clear? इनके जो relatives हैं वो लिख रहा हूँ. 4 ladies, 3 gentlemen, and the wife has 3 ladies and 4 gentlemen as their relatives. So in how many ways can they invite total 3 ladies and 3 gentlemen? Total 3 ladies और 3 gentlemen को invite करना है. यदि so that there are 3 of man and 3 of wife relatives. Man भी अपने 3 relatives को ही invite करेगा और lady जो है वो भी अपने 3 relatives को invite करेगी. लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना, बराबर बराबर number of जो है husband wife में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर relatives जो है उनको हमें जो है कॉल करना है. So we can solve this by making different cases, correct? So let's say the man has invited 3 ladies, so the wife will invite 3 gentlemen to the party. 3 of man, 3 of wife, and total 3 ladies and 3 gentlemen have been invited. Second case would be 2 ladies and 1 gentleman, and the wife invites 1 lady and 2 gentlemen. So 3 of man relatives, 3 of wife relatives, 2 plus 1, 3 ladies, 1 gentleman and 2. 1 gentleman and 2 gentlemen, total 3 gentlemen. Clear? Now the third case. 1 lady, 2 gentlemen, and 2 ladies and 1 gentleman. And finally, the case he invites 3 gentlemen and she invites 3 ladies. So we will be doing the selections based on this. So the first one, 3 ladies out of 4. So 4C3 into, then 3 ladies and 4 gentlemen. 4 gentlemen, so 3 gentlemen, so 4C3. Plus next case, 2 ladies, so 4C2 into 1 gentleman out of 3, 3C1 into 1 lady out of 3, 3C1 and 2 gentlemen out of 4, 4C2. Correct? Plus 1 lady out of 4, so 4C1 and 2 gentlemen out of 3, 3C2. Then 2 ladies out of 3, 3C2 and 1 gentleman out of 4, 4C1. And finally, 3 gentlemen out of 3 to 3C3 and 3 ladies out of 3, that is 3C3. So this is what you will have to calculate. 4C3, 4C3, 4 4s are 16 plus 6, 4 2 4C2 6, 6 3s are 18 into 18 plus 4 4 3s are 12, 12 12s are 12 into 12, 144 plus 1. Clear? So 16 plus 324 plus 145, 144 plus 1. So 324, 340 and 145, 584. So your final answer will be 485. It's an integer type. So 3-digit का आंसर आ रहा है and the final answer is 485. What we have done, just we have made the cases properly out of man and wife relatives, how many you will invite, so that all the conditions does satisfy according to the question. Clear? ठीक है, सिंपल है, but just cases बनाकर proceed करना भी हमें आना चाहिए. Okay?
Now next question, again बाइनोमियल से डिविजिबिलिटी वाला, मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, डिविजिबिलिटी वाला एक क्वेश्चन और करवाया था, है ना, हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। हमें देखना है जब 32 रेज़ पावर 64 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। So your aim will be, your aim should be to break this 32 to the nearest multiple of some 7. So one thing that you can write 7 4s are 28, you can write it as 28 plus 4 raised power 64 and then you can check. अच्छा, थोड़ा डिजिबिलिटी वाले में आसान होता है, अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो उसमें एक टर्म 1 रहे। अब 1 रहने का क्या मतलब है, देखो, या कैसे हम उसको 7 तक कन्वर्ट करें। सबसे पहले 32 is 2 raised to the power 5 raised to the power 64, that is 2 raised power 320, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं 2 क्यूब 8 होता है और 8 जो है वो 1 प्लस 7 होता है, तो 7 प्लस 1 का एक्सपेंशन करना हमारे लिए आसान होगा। तो अगर देखिए, बेसिकली मैं 8 की पावर बनाना चाहता हूँ कुछ, 2 क्यूब की पावर, तो 325, तो यू कैन राइट इट एज 318, 8 9 3 12 into 2 square। बेसिकली आई वांटेड 300 जो भी पावर है वो जो है, क्योंकि टोटल सम 5 आ रहा था तो 2 पावर मैंने कम कर दी, टोटल सम 3 आएगा या 3 का मल्टीपल आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो नाउ आई कैन राइट इट एज 2 क्यूब raised to the power 3106 into 4. So this becomes 8 raised to the power 106 into 4, and 8 can be written as 1 plus 7 raised to the power 106 into 4. अब आप जब 1 plus 7 का रेज पर 106 का एक्सपेंशन करेंगे तो 1 plus 106 C1 into 7 plus 10 C6 C2 into 7 square and so on into 4 आएगा। अब जब आप बेटा इस पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से हर टर्म में एक ना एक 7 का फैक्टर होगा, तो ये सब टर्म्स तो पूरे डिवाइड होंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म दैट इज 1 into 4 ये बचेगा। So the remainder when this is divided by 7 will be 4, not 1. 1 is multiplied by 4 outside. So 4 will be the remainder when it's divided by 7. So it becomes easier if we break the binomial expansion, जैसे 7 से डिवाइड करें तो 1 plus something के फॉर्मेट में होगा, तो थोड़ा सा सोचना आसान हो जाता है। ठीक है भाई, आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और करते हैं, ये दोनों भी इंटीजर टाइप हैं। हमें इसके एक्सपेंशन में 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x cube till 1 plus x raised per 100, in the expansion of this we have to find the coefficient of x raised to the power 9. We have to find the coefficient of x raised to the power 9. So what can be done is, देखिए बेटा, क्या करा जा सकता है, एक तो तरीका जो है वो है ये टोटल केसेस हम फाइंड कर लें। x रेज टू द पावर 9 कैसे मिलेगा, देखिए अगर हम इस पहले वाले ब्रैकेट में 1 प्लस x में जो x है उसको अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8 में x रेज पावर 8 और x को मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट x रेज टू द पावर 9, and that x raised to power 9 should multiply with one of every other bracket। हर ब्रैकेट्स के जब टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 8 आपस में मल्टीप्लाई होकर बाकी सब कांस्टेंट जो है 1 से मल्टीप्लाई। सो हाउ विल वी गेट x raised to power 9 is that we will make the number of cases x into x raised to the power 8। first coefficient will be 1, right? ये श्योर है क्योंकि बेटा ये एक ही बार होगा ऐसा, x जब x का 8 से मल्टीप्लाई होगा और बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई होंगे, सब 1 से मल्टीप्लाई होगा सबका, ठीक है, ब्रैकेट्स में। नेक्स्ट x स्क्वायर जब x रेज पावर 7, यहाँ x 1 प्लस x स्क्वायर में x स्क्वायर और 1 प्लस x रेज पावर 7 में x स्क्वायर और x की पावर 7 मल्टीप्लाई तो x की पावर 9, और वो x की पावर 9 बाकी बचे हुए हर ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। द थर्ड वन that is x cube x raised to the power 6, fourth one x raised to power 4 into x raised to the power 5। चेक कर लीजिए और कोई तरीका तो नहीं है x raised to power 9 का, दो टर्म्स के प्रोडक्ट से, तो यही जो है 4 केस आए। नाउ द फिफ्थ केस x raised to the power 1 into x square, चेक करते जा रहे हैं अपन 1 और 2 3, 9 में से 3 तो x की पावर 6, अब तीन ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो, x square with 1 plus x raised to the power 6 में x की पावर 6 है, तो 6 and 2 8 and plus 1, और बाकी सब ब्रैकेट्स के 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। सिक्स्थ x raised to the power 1, 6 से 1 अगर मैं इसको दे दूं तो x cube x raised to the power 5, this will be the sixth case। seventh case, right? 3 से अगर मैं एक इसको दे दूं x square x cube x raised to the power 5, one more way of getting x raised to the power 9। seventh case
You can give 1 to here, x raised to the power 1 into x raised to power 4 into x raised to power 4. Total 7 cases अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, right? So है ना, 4 4 and this, and then there will be one more case 8 where x square x cube x cube, x square x cube x cube, all these three terms get multiplied with each other. So 3 3 6 and 8. No other way by the three total terms के multiplication से you will get x raised to power 9. अच्छा 4 terms से सोचें, अच्छा 4 terms में भी minimum अगर आप 1 2 3 4 लेते हैं तो 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 हो जाएगा. You will not get x raised to power 9. So all these 8 cases are sufficient to get the coefficient of x raised to power 9. So the coefficient of x raised to power 9 will come out to be 8. The coefficient will come out to be 8 because there are 8 terms और सबका coefficient 1 1 1 आएगा, तो add करने पर 8x raised to power 9 आएगा. So total 8 will be the coefficient. Clear है भाई? ठीक है, ये हो गया question number 15 का solution. Now next question number 16. Find the number of 4-lettered words. Find. बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें. आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतर मंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके. Find the number of 4-lettered words which can be made using the letters of the word hippopotamus. Now this is what selection of alike objects. ठीक है ना, तो alike objects के सिलेक्शन के लिए पहले हम काउंट करेंगे कि कौन सा लेटर कितनी कितनी बार है. जैसे मैं इसमें देखूं P जो है, मुझे एक P का बॉक्स दिख रहा है और P इसमें मुझे टोटल 3 टाइम्स जो है वो अवेलेबल दिख रहा है. अच्छा आफ्टर P आई कैन सी O, एंड O जो है वो कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो मैं वो बॉक्स बना लेता हूँ. P कैंसिल हो गया, O हो गया. अच्छा आफ्टर P एंड O लेट अस टेक अदर लेटर्स. H एक बार है, I भी 1 टाइम्स, ठीक है, P हो गया, O हो गया, T 1 टाइम्स, A 1 टाइम, M 1 टाइम, U also 1 time, and S 1 time. Just for your cross checking, count all the numbers 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12. Clear? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Total 12 letters, right? Now selections. How do we do selections of the alike letters? अलाइक लेटर्स के सिलेक्शन के लिए देखिए बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में 3 पी है, उस बॉक्स में से आपको पी सेलेक्ट करना है, तो बेटा पी सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है. या तो आप एक पी निकालो या 2 पी निकालो या 3 पी निकालो. यू जस्ट पुट अ हैंड इन दैट बॉक्स व्हिच हैज 3 पीस. एक पी बिकॉज ऑल द पीस आर आइडेंटिकल. एक पी निकालोगे एक तरीका, दो निकालने तो दो पी एक साथ निकाल लो, देयर इज ओनली वन वे. तीन निकालने तो तीनों एक साथ निकाल लो, देयर इज ओनली. So we have the choices of selecting the boxes and not the things which are inside the box because the things are identical. या तो एक चीज है या दो या तीन भी है तो भी identical है. So you have to make a 4-letter words, but ये भी ध्यान रखना है कि चारों जो है वो distinct होने चाहिए. तो first case क्या हो सकता है? देखो चारों alike तो हमारे पास available ही है. 3 alike plus 1 different. Second case 2 alike plus 2 other alike. ऐसा हो सकता है 2 alike and 2 other alike. And the third case will be 2 alike plus 2 other alike, and the last case that will be 2 alike plus 1 different plus 1 other different. ठीक है, तो all together there will be 3 cases. वैसे तो केस एक और हो सकता था 4 different, but क्वेश्चन कह रहा है all 4 letters should not be different. ठीक है, तो सबसे पहले 3 alike के लिए एक बॉक्स अवेलेबल है, तो 1C1 से वो बॉक्स सिलेक्ट किया, और एक डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉक्सेस आते हैं. 8 में से कुछ अभी एक बॉक्स ले लो, जो बॉक्स आपके हाथ में आएगा उसमें से एक लेटर निकाल लेना, तो एक डिस्टिंक्ट अल्फाबेट हमारे पास आ जाएगा. तो
8C1 से कोई एक बॉक्स की हमें जरूरत थी। अच्छा, 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक। सो 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक सेलेक्ट करने के लिए टोटल हमें 2 बॉक्सेस की जरूरत है। एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें 2 आइडेंटिकल चीजें और एक और ऐसा बॉक्स चाहिए जिसमें 2 आइडेंटिकल चीजें। तो these 2 boxes and I required 2 boxes out of 2, so 2C2 से ये काम हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, 2 अलाइक, तो 2 अलाइक के लिए either this or this box, तो 2C1 and 1 distinct and 1 other distinct। इसका मतलब टोटल 2 डिस्टिंक्ट चीजें हमें लेनी। तो बेसिकली एक बॉक्स तो हमारे पास कम हो गया, अब 8 बॉक्स बचे। 8 में से कोई से भी हम 2 बॉक्स और सेलेक्ट करेंगे। सो 2C1 into 8C2, so the number of words that can be formed, arrangement और करना है। 8C1 that is 8 into 4 factorial upon 3 factorial because 3 are alike। then इसको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, और टोटल 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial plus 2 into 8C2, 7 4s are 28 into 4 factorial upon 2 factorial. This will be your final answer. So 8 into 4 plus 6 plus 28 into 24. So I have written the answer. I have already calculated it. When you finally solve it, you get the answer as 710. Clear? So the number of words, 4-letter words, जिसमें चारों डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, that can be made using the letters of the word hippopotamus are this. So ऐसे ही केस बनाते हैं, 5 लेटर होते तो उसके केस बनाते, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता तो एक केस और रहता ऑल 4 डिस्टिंक्ट, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। 4 डिस्टिंक्ट चीजें करनी है तो वो भी कर सकते थे। सो दैट इज हाउ वी प्रोसीड इन द सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। सिर्फ सिलेक्शन करना होता तो ये आंसर होता, बट क्योंकि हमें नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने, तो वर्ड्स मतलब उन्हें अरेंज भी करना है, तो दैट मीन्स आफ्टर सिलेक्शन उनका अरेंजमेंट हम करते चले गए। ओके okay students, now we'll do next question. It is a paragraph, so 17 18 19, it has 3 parts. Let us read the question. Binomial से related question है और single choice है ना, option जो है single choice है। Let the second, third, fourth term in the expansion of x plus a raised to the power n is a natural number, a and x both are real numbers। तो इसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमें दे रखे हैं 240 720 1080। ठीक है क्वेश्चन। जस्ट द कैलकुलेशंस, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं a x and n, तो 3 इक्वेशन से कैलकुलेशंस कितने इफेक्टिवली हम करते हैं, दैट इज ऑल दिस क्वेश्चन इज अबाउट। सो the second term in the expansion of x plus a raised to the power n. I hope you can write the second term. You write the general term tr plus 1 x raised to the power n minus r into a raised to the power r. उससे second term अगर आप कैलकुलेट करेंगे, it will be nc1 x raised to the power n minus 1 into a, and the value of this is given out to be 240. This is equation number 1. Then the third term in the expansion will be nc2 x raised to the power n minus 2 a square. Its value is given 720. So this will be second equation. And the third equation, that is fourth term, nc3 x raised to the power n minus 3 a square is equals to 1080. Now, how to solve these 3 equations? See, the way we solve this, अगर हम first और third equation को multiply करें तो total n की power कितनी आएगी, 2n minus 4, और इसका square करोगे तो भी 2n minus 4 आएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से a cube आएगा, सॉरी this will be a cube, my mistake। इन दोनों के प्रोडक्ट से a raised पर 4 आएगा और इसका स्क्वायर a raised पर 4 आएगा। So what I am doing is इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर? So I will be getting nc1 into nc3 upon nc2 का whole square, and this is 240 into 720 divided by 1080, sorry 240 into 1080 upon 720 का whole square. Clear? 720 into 720, because every other term x की power and a, they get cancelled. So from now, if you will calculate the value of n effectively, you can easily calculate now the value of n will come out to be 5. If you can check, ये बहुत सिंपल इजी तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा बेटा। 720 जैसे 243 टाइम्स कटेगा, 1080 और 720 में भी फैक्टर आएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। So finally you will get the value of n as 5. Now, as you put the value of n as 5, you can put in these 2 equations, and from these 2 equations you can get the value of a and x. ठीक है? तो जैसे पहली इक्वेशन आ जाएगी 5c1 into x raised to the power 4 into a, that is 240, right? And second equation आ जाएगी 5c2 into x cube
a square is equals to 720. Clear? So 5c1, 5c2, x and a में दो इक्वेशंस आ जाएंगे बेटा, ठीक है? So from here when you calculate the values of a and x, you will get the value of x as 2 and the value of a as 3. बस इसके बाद यही आपने करना है, बस इसी में जो कैलकुलेशंस में टाइम थोड़ा सा लगेगा वो इसमें लगेगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ये सब हो जाने के बाद हमें लेक्चर क्वेश्चन 17 देखना, वैल्यू ऑफ x माइनस ए की पावर n. तो x माइनस ए रेज टू द पावर n, वैल्यू विल बी -1. सो कौन सा आंसर आ गया बेटा इसका? ए ऑप्शन आ गया. Then the smallest term in the expansion of x plus a raised to the power n. x plus a raised to the power n में smallest term कौन सा होगा? Smallest term मतलब that is x is 2 plus 3 raised to the power 5. इसके expansion में which will be the smallest term? First term 5c0 2 raised to the power 5 plus 5c1 2 raised to the power 4 into 3 plus 5c2. You can find the numerically greatest term also. You can apply the formula of numerically greatest term, then also you can get the values. और नहीं तो इसमें तो आप ये देख सकते हो कि भाई टर्म्स जो है वो कितनी सी तो टर्म्स हैं, 5c3 into 2 square into 3 cube. So if you want you can calculate the values also. 5c4 into 2 into 3 raised to the power 4 and finally 5c5 3 raised to the power 5. You can write the expansion, you can write each term, you can calculate the values, or you can apply the formula of numerically greatest term, that is tr plus 1 upon tr is greater than or less than equals to n minus r plus 1 upon r. वो वाला जो फॉर्मूला होता है अपॉन into mod of vy upon ax, उससे भी आप r की वैल्यू जो है निकालकर टर्म कौन सी बड़ी है वो निकाल सकते हो. बेसिकली हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी सबसे बड़ी, सॉरी स्मॉलेस्ट टर्म, सॉरी वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट टर्म. तो वी हैव टू फाइंड, अच्छा स्मॉलेस्ट टर्म फाइंड करना है तो फिर तो आपने ऐसे चेक करना है, जैसे ये वैल्यू 32 आ गई, अब ये 5 इंटू ये तो बड़ी लग रही है इससे, ऐसे ऐसे बीच में मिडिल टर्म्स ये वाली जो होगी और ये वाली होंगी, इनके तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही ज्यादा होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू 32 से ज्यादा है. तो स्मॉलेस्ट टर्म जब आप चेक करेंगे यू विल गेट 32 विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू. 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 में वैसे भी ये छोटा है, 2 रेज़ पावर 5, ठीक है? And the last one, 19th one, sum of odd numbered terms. Sum of odd numbered terms in this. ठीक है? तो in the expansion of x plus a raised to the power n. In the expansion of x plus a raised to the power n, you have to find the sum of odd numbered terms. तो कौन कौन सी हो गई भाई odd number की terms? First term, third term and fifth term. These are the odd number terms. तो इनका जब sum आप calculate करोगे, odd numbered terms. So when you will calculate the sum, that is 32 plus next is 10, 5c2 is 10, 2 cube is 8 and 3 square is 9, and finally the fifth term 5c4 is 5 into 2 into 3 raised power 4, 81. Clear? So this is 32 plus 720 plus 162, 5 to the 10, 810. ठीक है? This will be your final answer. So you can check when you solve, you get the answer as 1562. इन तीनों का सम करोगे तो 1562. ठीक है भाई? तो इफेक्टिवली मोटे मोटा अगर ध्यान से देखें तो a, n और x की ही वैल्यूज कैलकुलेशन करने में ज्यादा से ज्यादा इसमें टाइम लगेगा. बाकी पैराग्राफ है तो ठीक है, आफ्टर यू गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ ax यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. क्लियर? अब हम बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, BNC से रिलेटेड. इट्स अ मैट्रिक्स मैच द कॉलम and it's based on the number of divisors, their sum of the divisors and वो जो कंसेप्ट होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो you have been given a number m which is 2 raised power 4 into 3 raised power 4 प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो इसमें जो सबसे पहले पूछ रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स. हम कितने तरीके से m को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स में ब्रेक कर सकते हैं. देखिए अगर हम कुछ चीज रिवाइज करा, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस. कैसे करते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस, जिसमें वन भी इंक्लूडेड है एंड द कंप्लीट नंबर n इज आल्सो इंक्लूडेड, नंबर ऑफ डिवाइसेस. तो वो हम कैसे करते हैं, हम ऐसा मानते हैं एक बॉक्स है जिसमें 2 पड़ा है 4 टाइम्स, 2 2 2 2. एक बॉक्स में 3 पड़ा है वो भी 4 टाइम्स. ऐसी 5 का बॉक्स है, एक 7 का बॉक्स है, एक 11 का बॉक्स है.
उस बॉक्स में से जितने भी हमारे पास टोटल जैसे 5 बॉक्स है, तो कोई भी आपने एक नंबर पिक किया किसी भी बॉक्स में से, या सब में से कुछ 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 किया, या 2 बॉक्स में से कोई नंबर निकाला, तो वो जो नंबर्स आप पिक कर रहे हो वो नंबर्स के कॉम्बिनेशंस जो है दे आर द बेसिकली डिवाइजर्स ऑफ इट. सो इट इज बेसिकली द सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स. तो सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स कैसे करते हैं? जैसे पहले वाले बॉक्स का नंबर ऑफ डिवाइसेस हमें निकालना है, तो इट विल बी 4 plus 1 into 4 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1. क्लियर है? नंबर ऑफ डिवाइसेस कैलकुलेट करने का यही तरीका है ना? तो ये जब टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस यू विल बी गेटिंग विल बी 675, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है एंड द नंबर इटसेल्फ. अच्छा, इफ दे आस्क फाइंड द नंबर ऑफ proper divisors, so the 1 and number itself are not proper divisors, so you remove 2 from it. अब जैसे फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसमें बोला नंबर ऑफ वेज इन विच m कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइसेस. तो बेटा उसका जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं टू डिवाइसेस के प्रोडक्ट में, अगर आपने उसे रिजॉल्व करना है तो फॉर्मूला होता है a plus 1 into b plus 1 into c plus 1 and so on. कब? जब आपने m को मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है p raised to the power a into q raised to the power b into r raised to the power c and so on, जहाँ p q r प्राइम नंबर्स है. तो the number of ways in which it can be resolved as a product of two divisors, this upon 2 if m is not a perfect square. है ना भाई, ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है. और अगर m परफेक्ट स्क्वायर है, if m is a perfect square, then the number of ways by which it can be resolved as a product of two divisors will be a plus 1 into b plus 1 so on, last में plus 1 divided by 2. तो अगर हम अपने इस नंबर को देखें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. भैया आप इसको 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 7 into 11 का होल स्क्वायर बना सकते हो. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ p? नंबर ऑफ वेज विल बी, नंबर ऑफ वेज कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? ये वाला फॉर्मूला. So a plus 1 into b plus 1, that is we have already calculated, that is 675 plus 1 divided by 2. So your answer come out to be 338. तो जो p है, p इसका जो आंसर है ये किससे मैच कर रहा है भाई? p is matching with c. p is matching with c. ठीक है, चलिए ये p पार्ट हो गया. अब q में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ m which are divisible by 60. तो m के ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे which are divisible by 60? अच्छा, जो 60 है, what is 60? It is 4 into 3 into 5, that is 2 square into 3 into 5. तो अगर किसी नंबर को, किसी डिवाइजर को 60 से डिवाइड होना है तो उस डिवाइजर में कम से कम एक 4 एक 3 और एक 5 होना ही चाहिए. We have to select at least 2 2s, 1 3 and 1 5. So from this box, which box? From the box which is having uh, twos, ठीक है. तो हमें क्या करना है, देखिए मैं ऐसे समझाता हूँ. जो टू वाला बॉक्स है उसमें 1 2 3 4 4 टू पड़े थे. तो इस बॉक्स में से हमें दो दो निकालने, दो दो पिक करने का क्या तरीका है? एक या तीन दो निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चारों निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो टूज को सिलेक्ट करने के तरीके 3 आ रहे. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 टूज. बॉक्स में हाथ डालो, दो दो बाहर निकालो, एक तरीका है. तीन दो बाहर निकालने तो 3 2, क्योंकि अलाइक चीजें, वो एक तरीका है. और चारों दो निकालने तो एक तरीका है. 1 + 1 + 1 टोटल 3 वेज. ऐसे ही 3 वाले बॉक्स में बात करें, हमारे पास बॉक्स में तीन कितने हैं? तीन कितने हैं? 4 बार. हमें कम से कम एक तीन चाहिए, तो एक तीन लोगे या दो लोगे या तीन लोगे या 4 बार लोगे तीन को. तो 3 को सिलेक्ट करने के 4 वेज हो गए. ऐसे ही 5 की बात करें, 5 कितना है बॉक्स में? दो पड़े, हमें एक 5 चाहिए ही चाहिए. अच्छा, एक 5 चाहिए तो एक 5 निकालोगे एक तरीका, या दोनों 5 निकालोगे तो इसके दो तरीके. 7 बॉक्स में कितने? दो हैं. 7 पे कोई कंडीशन नहीं, नहीं भी निकालोगे तो उसका एक तरीका. एक 7 निकालो या दो 7 निकालो, टोटल 3 वेज. और सेम ऐसे ही 11 के भी टोटल 3 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3 into 4 into 2 into 3 into 3. ठीक है ना? तो दिस विल बी द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, दिस विल बी द नंबर ऑफ डिवाइजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 60. तो ये कैलकुलेट करने पे यू गेट आंसर एज 216. सो 216 देखेंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी में, तो क्यू का आंसर मैच करता है बी ऑप्शन से. ठीक है. एंड नाउ द लास्ट वन, rth पार्ट, सम ऑफ ऑल odd divisors. sum of all odd divisors, मतलब odd divisors मतलब which are odd divisors, which are odd. 2 को सिलेक्ट नहीं कर सकते. which are divisible by 5 but not 7. उसमें भी हमें वो लेने हैं जो 5 से डिवाइड होंगे बट 7 से नहीं होने चाहिए.
तो देखिए एक तो ऑड डिवाइजर्स है, इसका मतलब 2 को सेलेक्ट करना ही नहीं है। उसके अलावा 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, क्योंकि इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। एक बार आए, 2 बार आए चलेगा, और 7 नहीं होना चाहिए सिलेक्शन में। तो 2 वाला बॉक्स तो हमने खिसका दिया, इसमें से लेना ही नहीं। अच्छा 3 वाले बॉक्स में से, अच्छा उनका सब भी निकालना है। 3 वाले बॉक्स में से या तो 3 की पावर 0 लोगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। इसका क्या मतलब है, जब आपने कुछ नहीं निकाला 3 की वाले बॉक्स में से तो 1 आया डिवाइस। एक 3 निकाला तो उसका सम 3 हो गया, 2 3 निकाले तो उसका वैल्यू 9 हो गया, 3 बार 3 निकाले तो उनका सम 27 हो गया, है ना। बेसिकली जो इनका सम ऑफ ऑल द डिवाइस की बात करें, और 4 बार 3 निकाला तो 3 की पावर 4 इनटू अच्छा 5 कम से कम एक बार लेना ही है, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 उनकी वैल्यूज जो होगी, क्लियर है। सम ऑफ ऑल द डिवाइसेस इनटू 7 का बॉक्स हमें लेना ही नहीं, और 11 ना लो चलेगा, एक बार लो या 2 बार, ठीक है। सो दिस बिकम्स व्हाट, सम करेंगे 81, 27, 9, 3 and 0. So when you'll add, you'll get 121, and this is 5 square into 5, that is 30 into 121, 133. Clear? So this is 11 square into 30 into 133, and question के हिसाब से this is equals to 11 square into 133 lambda. So the value of lambda comes out to be 30. लैम्डा की वैल्यू 30 आ गई, दैट मींस आर जो होगा इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर ए। आर इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर ए। तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन जैसे दे रखे हैं करेक्ट मैचिंग करेंगे, सो वी विल गेट द प्रॉपर आंसर। ठीक है भाई, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। नंबर ऑफ डिवाइसेस वाला भी जो क्वेश्चन है जरूर रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट है बेटा वो भी। ठीक है, बेगर्स मेथड वगैरह मैंने जो है वो करवा दी, बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म एक्सपेंशन उसके क्वेश्चन हमने करे। All right, this is your revision for the chapters of PNC and PD. बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।